السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 45 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 46 اور 47 دو آیتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ تو دو آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے الذین 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 الذین، یہ غلط ہے۔ لام میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، وہاں پر کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تشدید میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے کہ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، جو بھی حرکت ہو اس کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم حمزہ کو لام سے ملائیں گے، الذین الذین الذین، زی میں ہم پریس کر رہے، پریشر ڈال رہے، یعنی کہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریشر ڈال رہے، زین الذین الذین، اس طرح سے الذین الذین، نون کو ہم نے جلد پڑھا، کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا۔ تو یہاں الذین کو ہم نے پڑھ لیا صحیح طور سے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ آگے چلیں گے یظنون یظنون، یا زبر یا، ضا نون پیش ظن، یظن نون واو پیش نو۔ اب یہاں دیکھیں کہ نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے نا شد؟ نون کے اوپر شد آ گیا تو نون مشدد بن گیا۔ اب نون مشدد جہاں پر بھی آئے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ دو حرف میں کرتے ہیں نا، جبکہ ان پر شد آئے یعنی کہ تشدید۔ وہ حرف دو کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نون اور نمبر 2 میم، یہ دو حرف ایسے ہیں جن پر شد آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے یظن یظن یظن، پھر آگے واو مدہ بھی آ رہا ہے، نون 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 نون، الذین یظنون، یہ ہوگا پورا، الذین یظنون الذین یظنون، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ یعنی کہ زی میں ہم نے کیا یا مدہ، نون پر ہم نے کیا نون مشدد کا غنہ، آگے پھر کیا واو مدہ اور نون کو ہم جل پڑھ رہے ہیں، آگے پھر نون مشدد کا غنہ، یہاں پر بھی نون کے اوپر شد آ گیا نا، انہم انہم انہم، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح ادا کریں گے۔ آگے چلیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہا کو اس میم سے ملا دینی ہے نا، جب
जज्म वाला हर्फ और तशदीद वाला हर्फ दोनों साथ साथ आए तो हम तशदीद में मिलाते हैं ना, जज्म को स्किप करते, तो उस हा को मीम से मिला रहे। यहाँ पर देखिए फिर मीम के ऊपर क्या है, शद है ना, तो यहाँ पर फिर करेंगे गुन्ना, तो क्या पढ़ेंगे, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम, पूरा हुआ मीम मुशद्दद का गुन्ना यहाँ तक। आगे चलेंगे, मीम को फिर एक बार पढ़ेंगे ना, मीम मुशद्दद का गुन्ना तो किया, लेकिन फिर मीम को एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर क्या है, शद है, शद वाले लेटर को 2 मर्तबा पढ़ते हैं, तो मीम के ऊपर फिर क्या है, दम्मा है, यानी कि पेश है, तो पेश के साथ फिर पढ़ेंगे मीम पेश मु, फिर लाम खड़ा जबर ला, मुला, काफ वाव पेश कु, मुलाकू। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जिस तरह हम जबर जेर पेश को जब अरबी में बोलते हैं ना, तो जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा बोलते हैं, उसी तरह से खड़ा जबर को भी अरबी में कुछ बोलते हैं। खड़ा जबर को बोलते हैं फतहा तवीला और खड़ी जेर को बोलते हैं कसरा तवीला और उल्टा पेश को दम्मा तवीला, ये नाम है अरबी के। तो अरब कंट्रीज में जब लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसी तरह से उन्हें अरबी में पढ़ाया जाता है। जैसे कि यहाँ यूएई में जो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो अरबी वॉवेल्स बताती हूँ, और इसी तरह से अरब के कंट्रीज में हो गए, तो जहां पर भी अरबी है ना, तो वहां अरबी में बताया जाता है कि जबर जेर पेश को अरबी में क्या बोलते हैं। जबर जेर पेश तो ये उर्दू है, ये उर्दू है, और अरबी में कहते हैं फतहा कसरा दम्मा, उसी तरह से फतहा तवीला, कसरा तवीला, दम्मा तवीला। उसी तरह से जो 2 जबर 2 जेर 2 पेश हम पढ़ते हैं ना, उनका भी नाम है फतहा तईन, कसरा तईन, दम्मा तईन, इस तरह से। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला मैं एक बार फिर से नूरानी कायदे पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप लोगों को अरबी में बताऊंगी कि अरबी में क्या कहा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए खड़ा जबर है, खड़ा जबर को हम खींचेंगे एक अलिफ की मकदार के बकदर, मूला और काफ वाव पेश कु, फिर यहाँ पर हमने किया है वाव मद्दा। यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, जरा गौर से सुने, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू, एक बार और देखें, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा, तो जितने कवायद है उसको प्रॉपर तौर पर अदा करते हुए हमने पढ़ा, जिस तरह पढ़ना चाहिए। आगे चलेंगे, रब्बिहिम, रब्बिहिम, रबा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, रब्बिहिम, रब्बिहिम पढ़ते हुए रा को हम पुर रखेंगे क्योंकि रा के ऊपर है जबर। रब्बिहिम व अन्नहुम, व अन्नहुम, नून मुशद्दद का गुन्ना फिर कर रहे हैं और हामिम पेश हुम, व अन्नहुम। यहाँ पर देखिए एक चीज गौर करे, इस चीज को ध्यान में रखिए, जब हम करेंगे ना, कुछ लोग करते हैं व अन्नहुम, व अन्नहुम, उन्होंने गुन्ना तो प्रॉपर अदा किया, ठीक है, साफ सुथरी तौर पर गुन्ना को अदा किया, लेकिन गलती क्या हो गई कि जब नून को सेकंड टाइम जो पढ़ेंगे वो जबर की हरकत के साथ जो पढ़ेंगे हम, तो उसमें खींचाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। किस तरह से, बाज लोग जो पढ़ते हैं व अन्नाहुम, व अन्नाहुम, नाहुम नहीं पढ़ेंगे, व अन्नाहुम, व अन्नाहुम, व अन्नाहुम, नून को जल्द अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि नून के ऊपर क्या है, जबर है। अगर नून के साथ अलिफ लग कर आता, क्या होता, अलिफ लग कर आता, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर है ना, नून है और फिर हा के साथ अलिफ है। अगर हा नहीं होता, नून होता और इसके साथ ये हा नहीं होता, अलिफ होता, तो हम क्या पढ़ते, व इन्ना पढ़ते ना,
तब हम पढ़ते वइन्नाहुम, लेकिन चूंकि यहाँ पर अलिफ नहीं है, सिर्फ जबर है, तो हम जल्द अदा करेंगे। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम, यहाँ तक हो गया। आगे चलेंगे व इलैहि हमजा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई, लई में हम कर रहे हैं यालीन का कायदा, लई को जल्द पढ़ेंगे, लई और हाजिर ही। व इलैहि जब यालीन या वावलीन, लीन में से कोई भी आ जाए, लीन जो है ना, लीन हर्फ कितने हैं? 2 हैं, वावलीन और यालीन। जब इनसे पहले जबर होता है तभी बनता है, यानी कि या साकिन से पहले जबर हुआ तो यालीन, वाव साकिन से पहले जबर हुआ तो वावलीन। और लीन को नरमी के साथ हम जल्द अदा करते हैं, यही है कायदा। तो जब भी हम लीन हर्फ को अदा करें ना, तो नरमी और जल्दी ये 2 चीजें ध्यान में रहे। व इन्नहुम इलैहि 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 इलैहि, कुछ लोग अगर इस तरह पढ़ दें व इलैहि व इलीहि, बाज लोगों का इस तरह भी हो जाता व इलीहि व इलैहि, तो खींचना नहीं है और या मद्दा की तरफ भी साउंड नहीं लेकर जाना, बिल्कुल साफ सुथरी आवाज में पढ़ना है, लैही लैही। आगे राजिऊन, रा खड़ा जबर रा को पुर रखेंगे खींचते हुए, जीम जेर जी आयन वाव पेश ऊ, यहाँ पर हम कर रहे हैं वाव मद्दा, लेकिन खास ख्याल रखे कि जो हर्फ आयन है वो हमजा ना बने, वो आयन ही रहे, उसको हम हलक से अदा करेंगे प्रॉपर तौर पर। और नून पर हमें करना है वक्फ। पूरी आयत को गौर से सुने। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। एक बार फिर सुने, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तो आयत नंबर 46 कंप्लीट होता है। आगे चलेंगे आयत नंबर 47 की तरफ। या बनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? मद है ना, या खड़ा जबर या, और बनी, या को जितना खींचेंगे उससे कई ज्यादा नी को खींचना है, क्योंकि नी के ऊपर क्या है? मद है, या मद्दा, और उसके ऊपर मद भी आ गया, तो यहाँ पर हम खींचेंगे 3 से 4 अलिफ की मकदार के बाकदर। इसराईला, यहाँ पर फिर खींचेंगे, मद करेंगे और ईला। तो देखें ये जो है ना, ये बनी के ऊपर जो मद है ना, ये है मद्दे मुनफसिल, और ये रा में जो मद है ना, ये है मद्दे मुत्तसिल। ठीक है, अब क्यों है ये अगर नहीं आप जानते तो आप मेरे नूरानी कायदे का जो चैनल है, नूरानी कायदे का जो प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देखें और सर्च करें। मद का बयान हमने तफसीली तौर पर बताया है, पढ़ाया है, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं कि मद की कितनी किस्में हैं, मद को कितना खींचा जाता है, किस मद का क्या नाम है, तो वहां पर आप जाकर सीख सकते हैं। जो मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता होगा कि क्यों होता है, मद्दे मुनफसिल कब बनता है और मद्दे मुत्तसिल कब बनता है। बहरहाल यहाँ पर हम 3 से 4 अलिफ की मकदार खींचेंगे। आगे चलेंगे तो हमजा या जेर ई, यहाँ पर हम कर रहे हैं या मद्दा, फिर लाम को जाल से कनेक्ट करेंगे, लज काफ पेश कू, रावा पेश रू, यहां तक देखें। या बनी इसराईल ज़कुरू। आगे चलेंगे निअमती यल्लती, निअमती यल्लती, तोड़ तोड़ के मैंने बताया, इससे और आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता।
निअमती यल्लती। अब जब हम टोन में पढ़ेंगे, जब हम तर्ज में पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? निअमती यल्लती, निअमती यल्लती। हुआ ना? ये मद की कौन सी किस्म है ये भी बता दूं, ये है मद्दे मुनफसिल, मद की दूसरी वाली किस्म। आगे चलेंगे, अनअमतु, अनअमतु। अब यहाँ पर नून साकिन आ गया ना नून साकिन। तो नून साकिन के बाद कोई कायदा तो बन रहा होगा। यहाँ देखिए नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? आइन है। यहाँ पर बन रहा है इजहार का कायदा, नून की आवाज को जाहिर करना है। इजहार कब हम करते हैं और इजहार कितने हर्फ में होता है, ये जानने के लिए नूरानी कायदे का जो लेसन बनाया है वो आप जाकर चेक करें। इजहार का कायदा अलग से लेसन बना हुआ है तफसीली तौर पर। आगे चलेंगे, आमतु, यहां तक देखें, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु, यहां तक हो गया। उसके बाद अलैकुम, अलैकुम, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, यहाँ पर फिर या लीन करे, काफ मीम पेश, कुम, अलैकुम। व अन्नी, व अन्नी, अन, नून मुशद्दद का गुन्ना, उसके बाद या मद्दा भी है, उससे लग कर आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नून होता या नहीं होता, नून के ऊपर शद होता और जेर होता, तो अब हम क्या पढ़ते? व अन्नी, व अन्नी, इस तरह पढ़ते। लेकिन चूंकि ये या के साथ लग कर आ रहा, तो अब यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना करने के साथ साथ हमें या मद्दा भी करना है। तो यहाँ पर फिर अब किस तरह का तर्ज हो जाएगा, अब किस तरह का कायदा बनेगा? व अन्नी, व अन्नी, इस तरह। आगे चलेंगे, फव्वलतुकुम, फव्वलतुकुम, दौद को मुंह भर कर बोलना है, दौद मोटे हर्फ में से है। फव्वलतुकुम अलल आलमीन, अलल आलमीन, यहां पर खींचना है आ में और मी में खींचना है या मद्दा। एक बार पूरा देखें, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फव्वलतुकुम अलल आलमीन। इस तरह से पूरी आयत पढ़ेंगे। एक बार फिर सुने, जब मैं पूरी आयत को पढ़ूं ना तो ध्यान दे कि जो मैंने कवायद बताए हैं उसको मैं इसमें डालकर पढ़ रही हूं, कोई कायदा छूट तो नहीं रहा। तो गौर से सुने, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अगर कोई पूरी इस आयत को नहीं पढ़ सकता तो वो रुक जाए, उसके बाद फिर लौटाएंगे, अनअमतु अलैकुम व अन्नी फव्वलतुकुम अलल आलमीन। तो इस तरह पढ़ें। तो आज के लिए यही दो आयत, आयत नंबर 46 और 47, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम और दो आयत पढ़ेंगे। तो इसको खूब मश्क कीजिए और जो जितने सारे मैंने कवायद बताए हैं उसको तो ज़बानी रट जाना, याद कर लेना बहुत 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 ज़रूरी है। तो कुरान अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहले आप मेरे नूरानी कायदा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर वो सारे वीडियोस को आप देखकर याद कर लें, या आप किसी कॉपी पर नोट कर लें, या जो मैं बता रही हूँ अगर आपको सुनने से समझ में आता है तो फिर वो आप पूरी वीडियो देखकर समझ लें। और उसके बाद आप यहाँ पर आए कुरान में तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि जो वहां पर पढ़ा है उसी को फॉलो करते हुए कुरान को पढ़ना है, और वही कहलाती है तजवीद के साथ कुरान पढ़ना। तो बस खूब
مشق کرے، خوب پریکٹس کرے، جتنی محنت کر سکتے ہیں کرے، محنت کرنے سے ہر کچھ ملتا ہے، محنت کرنے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سبھی کو اچھا رکھے اور اچھے کاموں کی طرف سبوں کی رغبت کرے اور برے کاموں سے ہر انسان کو روکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔